Has Pakistan's political climate ever intrigued you? If so, let's dive into the riveting journey of Nawaz Sharif, a stalwart in the nation's political sphere. His story is one of resilience, strategic maneuvering, and an unyielding pursuit of power, a tale that weaves through the complex fabric of Pakistan's political history. Nawaz Sharif's political journey kicked off in the late 70s when he became the finance minister of Punjab. Sharif's meteoric rise in politics saw him ascend to the position of Chief Minister of Punjab by 1985, a testament to his political acumen and charisma. However, the real turning point came in 1990 when Sharif was elected as the Prime Minister of Pakistan, marking the beginning of his indelible impact on the nation's political landscape. His first term, although cut short by President Ghulam Ishaq Khan in 1993, was marked by economic liberalization and privatization policies that continued to shape Pakistan's economy. Sharif's second term as Prime Minister, beginning in 1997, was a tumultuous period. Despite his attempts at constitutional reforms to strengthen the executive branch, his term was abruptly ended by a military coup in 1999. The following years were a challenging period for Sharif, marked by exile and a ban on participating in politics. However, these setbacks only seemed to fuel his resolve. Sharif made a triumphant return to Pakistan in 2007, and by 2013, he achieved an unprecedented feat by becoming the Prime Minister for the third time. His third term, however, was marred by controversy and allegations of corruption, leading to his disqualification and subsequent imprisonment in 2018. Despite these setbacks, Sharif's popularity remained undeterred. His party, the Pakistan Muslim League, continued to enjoy widespread support, particularly in Punjab, the most populous province of Pakistan. Now, after a self-imposed exile, Nawaz Sharif is back in Pakistan, and his political comeback has been nothing short of dramatic. His popularity has surged, with his approval ratings reaching a staggering 52% in December of 2023, up from 36% in June of the same year. As we approach the upcoming election on the 8th of February, the political climate in Pakistan is teeming with anticipation. With Sharif's main rival, Imran Khan, behind bars and his party facing numerous obstacles, Sharif's victory seems more likely than ever. But politics is a game of unpredictability, and nothing is set in stone. However, one thing is clear: Nawaz Sharif, the King of Pakistan, as dubbed by some international media outlets, is a force to be reckoned with. So, what does the future hold for Pakistan's political landscape? Will Nawaz Sharif secure his position as Prime Minister for an unprecedented fourth term, or will a new contender rise to challenge his dominance? Only time will tell. As the saying goes, the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. And for Nawaz Sharif, it seems the dream is far from over. Gallup, APOR, Bloomberg के बाद BBC रिपोर्ट में नवाज शरीफ को किंग ऑफ पाकिस्तान करार, 2013 में तीसरी मर्तबा वजीर आजम बनने का रिकॉर्ड कायम किया। बड़े हरीफ इमरान जेल में, इनकी मकबूल जमात को रुकावटों का सामना है। नवाज शरीफ पंजाब के सबसे मकबूल लीडर, कौमी सतह पर भी मकबूलियत 36 से 52% पर पहुंच गई है। आलमी नशरियाती इदारे BBC ने अपनी रिपोर्ट में करार दिया है कि पाकिस्तान के 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले और खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करके वतन वापस आने वाले नवाज शरीफ अब 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन के वाज़ेह फातेह नजर आते हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों में पाकिस्तान की सियासत पर इनकी बरतरी की वजह से ये पेशगोई की जा सकती है कि वो दोबारा सबसे बड़े ओहदे पर फाइज हो सकते हैं। इनकी आखिरी मुद्दत वजारत उज़्मा करप्शन पर सज़ा की वजह से ख़त्म हुई और उससे पहले मार्शल लॉ की वजह से इनकी हुकूमत का खात्मा हुआ था। अब भी नजर आता है कि नवाज शरीफ उसी ओहदे पर वापस आने में कामयाब हो जाएंगे। ये इस लिहाज से ड्रामाई वापसी होगी कि इससे कबल इन्हें पाकिस्तान की ताकतवर फौज का मुखालिफ तस्वुर किया जाता था। रिपोर्ट में साउथ एशिया के डायरेक्टर और तज्जिया निगार माइकल कैवजलमैन का कहना है कि नवाज शरीफ अगले वजीर आजम के लिए टॉप के उम्मीदवार हैं। इसलिए नहीं कि वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, बल्कि इसलिए कि इन्होंने अपने कार्ड बहुत महारत से खेले। नवाज शरीफ के कदीम हरीफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, जिन्हें माजी में फ़ौज की हिमायत हासिल थी, अब जेल में हैं। इनकी मकबूल जमात को मुल्क भर में रुकावटों का सामना है। रिपोर्ट में नवाज शरीफ को किंग ऑफ पाकिस्तान का खिताब दिया गया है और इनकी माजी की सियासत का भी जायज़ा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक 1999 में मार्शल लॉ ने इनकी हुकूमत का खात्मा किया। 2013 में फिर वज़ीर आज़म बन गए और तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने का रिकॉर्ड कायम किया। रिपोर्ट में 2017 के धरने और एहतजाज का भी हवाला दिया गया और मुकदमात का जिक्र किया गया है, जिनके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में इन्हें नाहक करार दे दी।
2018 में इन्हें करप्शन केस में 10 साल कैद की सजा हो गई। सजा मुअत्तल होने पर बाहर आए, लेकिन दिसंबर 2018 में इन्हें दोबारा करप्शन केस में 7 साल कैद की सजा हो गई। 2019 में लंदन जाने की इजाज़त मिल गई, जहां इन्होंने 4 साल तक लग्जरी फ्लैट में जलावतनी काटी। बीबीसी की रिपोर्ट से पहले गैलप पाकिस्तान के सर्वे में कहा गया कि नवाज शरीफ पंजाब के सबसे मकबूल लीडर हैं। कौमी सतह पर भी नवाज शरीफ की मकबूलियत जून 2023 के मुकाबले में 36% से बढ़कर दिसंबर 2023 में 52% पर पहुंच गई। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च (APOR) के सर्वे में कहा गया 51% लोगों ने राय दी कि मरकज और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। ब्लूमबर्ग के सर्वे में कहा गया कि नवाज शरीफ पंजाब में सबसे ज्यादा मकबूल हैं। रिपोर्ट में नवाज शरीफ की मुआशी पॉलिसियों को बेहतरीन करार दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि नवाज शरीफ के 2013 से 2018 के दौर हुकूमत में करप्शन 16 दर्जे कम हुई थी, जबकि पीटीआई के दौर में करप्शन इंडेक्स बढ़ गया था। आज़ाद सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि नवाज शरीफ की इलेक्शन में कामयाबी यकीनी है। इन्होंने हाफिजाबाद, मानसहरा, सियालकोट, हारून आबाद, सवात और फैसलाबाद में बड़े अवामी इज्तिमा करके इलेक्शन का टेम्पो बना दिया। जून 8 फरवरी करीब आ रहा है। इलेक्शन का माहौल बन रहा है, जिसमें नवाज शरीफ का किरदार कलीदी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस सूरत हाल को भान पर चुके हैं कि नवाज शरीफ की जीत यकीनी है, इसीलिए वो अपनी तकारीर में नवाज शरीफ को ही हदफ तनकीद बनाते हैं। इन्होंने अब जलसे में नवाज शरीफ ना खपे का नारा लगवाया। इससे कबल इन्होंने सिपर लाडला का खिताब दिया। इन्होंने नवाज शरीफ को मुनाजरे का भी चैलेंज दिया था। इलेक्शन में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं और 8 फरवरी को फैसला अवाम ने करना है कि वजारत उज़्मी का ताज किसके सर पे सजेगा।